नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता के पहले 3 अध्यायों को सफलतापूर्वक सीखने के बाद मैं चौथे अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having successfully learned the first 3 chapters, I welcome you for learning to chant the 4th chapter of Srimad Bhagavad Gita. I will chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. Nirashirata chittatma tyakta sarva parigraha शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो आशा रहित है तथा जिसने चित्त और आत्मा यानी शरीर को संयमित किया है, जिसने सब परिग्रहों का त्याग किया है, ऐसे पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होते। The person who is free from expectations, whose body, mind and senses have been mastered, who has given up all the possessions, doing action only that sustain the body, does not incur sin. Yadrichhalabhasantushto dvandvatito vimatsaraha samasiddhavasiddhau cha kritvapi na nibadhyate yadrichhalabhasantushto dvandvatito vimatsaraha samasiddhavasiddhau cha कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों से अतीत तथा ईर्ष्या से रहित, सिद्धि व असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता है। Remaining satisfied with what comes unasked for, having transcended the dualities, being free from jealousy and even-minded with reference to success and failure, he is not bound even though performing actions. Gata sangasya muktasya jnanavasthita chetasaha yajñāyacharatah कर्मा समग्रं प्रविलीयते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो आसक्ति रहित और मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले ऐसे पुरुषों के समस्त कर्म लीन हो जाते हैं। Of the liberated person who has got rid of attachment, whose mind is fixed in knowledge and actions undertaken for sacrifice, the karmas of such a one totally get destroyed. Brahmarpanam brahmahavihi brahmagnau brahmanahutam ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्
ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई हो, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। The means of offering is Brahman, the oblation is Brahman, offered by Brahman into the fire which is Brahman. Brahman indeed is to be reached by him who sees everything as Brahman. अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण उच्चतम पारमार्थिक दृष्टि से संबोधित कर रहे हैं, जहाँ सब कुछ केवल एक ब्रह्म ही देखा व जाना जाता है। बाकी सब केवल विभिन्न नाम और रूप मात्र होने के कारण व ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं होने के कारण दूसरे तीसरे नहीं देखे व गिने जाते। इसे समझने के लिए सोने और सोने के बने विभिन्न आभूषणों का उदाहरण देते हैं। यह एक ही सोना है जिसे चूड़ियाँ, अंगूठी, हार आदि कहा जाता है। ये सभी एक ही सोने के नाम और रूप मात्र हैं। इस प्रकार सोने की दृष्टि से सब कुछ केवल सोना ही है, सोने के अलावा और कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण परम सत्य की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु को ब्रह्म कह रहे हैं। मीनिंग, in this verse Shri Krishna is speaking from the highest paramarthic vision of one truth referred to as Brahman, wherefrom everything is seen and known only as one Brahman. Everything else, being mere different names and forms alone, is not counted as anything apart from Brahman. To understand this, let's take an example of gold and various ornaments made out of gold. It is the one gold alone that is called as bangles, ring, necklace, etc. All these are mere names and forms of the same gold. It is gold alone through and through. Thus, from the standpoint of gold, everything is nothing but gold alone. Just the same way, in the verse, Shri Krishna speaking from the standpoint of the highest and absolute reality is referring to everything as Brahman. दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कोई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही करते हैं और दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। कर्म योगीज परफॉर्म ओनली दैट रिचुअल दैट इन्वोक द डाइटीज, while other sannyasis offer themselves by themselves into the fire, that is knowledge of Brahman.